नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं इस वेबिनार में फोरबेस केयर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का वेबिनार खास तौर पर इसलिए तैयार किया गया है ताकि हम समझ सके कि मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, मरीज का अनुभव और डॉक्टरी सलाह ये सब मिलकर कैंसर के यात्रा में कैसे मदद करते हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं फोरबेस केयर में पेशेंट केयर टीम में कैंसर केयर एज अ केयर कंपेनियन के रूप में काम करती हूँ। आज के वेबिनार की प्रस्तुति यानी मुंह जुबानी मैं करूंगी। हमारे साथ आज जुड़े हैं कुछ खास अतिथि, डॉक्टर रूपज्योति शर्मा जो एक मेडिकल और हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट आसाम से। मानसिक गुप्ता जो फोरबेस केयर में साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है। हर्षा जोशी जो फोरबेस केयर में ऑन्कोडाइटिशियन है। मिस्टर नूर मोहम्मद अली जी जो एक केयर गिवर है और आज हमारे साथ अपनी प्रेरणादायक कहानी साझा करेंगे। मैं हमारे सभी वक्ताओं को तहे दिल से स्वागत करती हूँ और उन सभी प्रतिभोगियों का भी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमें विश्वास है कि इस ऑनलाइन इवेंट से कैंसर पेशेंट्स एंड उनके फैमिली मेंबर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैंसर के दौरान आहार एवं मानसिक मजबूती से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डाउट्स को क्लियर करने की। ये वेबिनार आप सभी के लिए, मरीजों, देखभाल करने वालों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए जो हर दिन मजबूती और साहस से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे लिए ये बेहद सम्मान की बात है कि मैं डॉक्टर रूपज्योति शर्मा का स्वागत करती हूँ। वे एमडी और डीएम हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट मेडिकल एवं हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर शर्मा कैंसर के मरीजों को संपूर्ण और बेहतर इलाज देने के लिए समर्पित है। आज वे हमारे साथ साझा करेंगे कि कैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, पोषण और मनोविज्ञान का सहयोग ये सब मिलकर मरीज को ठीक होने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाते हैं। ओवर टू यू सर। सो वेबिनारটো আমি কিয় পাতিলো নহয় জানো কথাটো। তো প্ৰথম কথা আমি যেতিয়া অপিডি পেচেণ্ট চাওঁ, কেঞ্চাৰ পেচেণ্টৰ সংখ্যা বহুত বেছি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, গোটেই পৃথিৱীতে। কিন্তু সেই অনুপাতে কেঞ্চাৰ ডক্টৰৰ যিটো সংখ্যা সেই অনুপাতে কম। তো সেইকাৰণে কি হয়, অপিডিত আমি এজন পেচেণ্টক যিমান সময় দিব লাগে, ধৰক এজন পেচেণ্টৰ যেতিয়া প্ৰথম অপিডিত আহে সেই কনচালটেশ্যনত 20ৰ পৰা 30 মিনিট সময় দিয়াটো প্ৰয়োজন এজন পেচেণ্টক গোটেই হিষ্ট্ৰী বা ভালকে ইভালুৱেশ্যন কৰোঁতে। কিন্তু ইমান সময়ৰ অভাৱ যে আমি গোটেইখিনি কথা এই সময়ত বুজাব নোৱাৰিব পাৰোঁ। কিছুমান ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম ক্ষেত্ৰতে এনেকুৱা হয় কি আমি বহুত ভালকে সেইটো সময়ত পেচেণ্টৰ লগত কথা বতৰা পতা আৰু পেচেণ্টৰ আহিখিনি একদম কমৰ ভিতৰতে কৰিব লগা হয়, 10 বা 15 মিনিট সময়। সেইখিনি বহুত মিনিমাম টাইম। তো সেইটো এটা কাৰণ। কিছুমান পেচেণ্ট প্ৰত্যেক পেচেণ্টে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হস্পিটেলত আহে, তো তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত শংকা থাকে যে কেনেকুৱা হয় নতুন হস্পিটেল, নতুন পৰিৱেশত প্ৰত্যেকৰে এটা আনইজিনেছ এটা ফিল হয়। সেইকাৰণে বহুতে প্ৰথম দিনা কনচালটেশ্যন ভালকে কথা বতৰা পতা দিগদাৰ হয়। এনেকুৱাও দেখা যায় যে কিছুমান পেচেণ্টে যেতিয়া আগতে বাহিৰত কনচালটেশ্যন কৰে বা যিয়ে নহয়, কেতিয়াবা আমাৰো তেনেকুৱা হয় যে কিবা এটা সুধিলে ধৰক ইমান বিজিৰ মাজত থকা টাইপো আকৌ পিছত এনচাৰ দিম, তেনেকুৱাকে অলপমান ডাউট বিহেভিয়াৰো কেতিয়াবা হ'ব পাৰে। তো সেইটোৰ কাৰণেও বহুত পেচেণ্টে ভয় কৰে যে নুসুধোৱে নেকি একো, সুধিলে খঙে কৰিব, এনেকুৱা এটা কথা। আৰু মেক্সিমাম পেচেণ্টৰ এনেকুৱা হয় যে কি সুধিব লাগে নিজৰ বেমাৰটোৰ বিষয়ে সেই কথাটোৰ আইডিয়া বহুতে একচুৱেলি নাজানে। তো সেইটো কাৰণে এটা ডিফিকাল্ট হয় যে এই কনভাৰ্চেশ্যনটো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে। তো সেইটো কাৰণে ৱেবিনাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট মাধ্যম। যিখিনি বস্তু আমি অপিডিত কৰিব নোৱাৰোঁ সচৰাচৰ, সেইখিনি বস্তু ৱেবিনাৰৰ মাধ্যমেৰে আমি কিছু সংখ্যক হ'লেও যদি আমি পেচেণ্টৰ লগত কনভাৰ্চেশ্যন বা কেয়াৰ গিভাৰৰ লগত আমি কনভাৰ্চেশ্যন কৰি পেলাই আমি কথাবোৰ বুজাব পাৰোঁ বা পেচেণ্টে কিছুমান কথা বুজি পায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো বেটাৰ হয়। তো আজি আমি অপেনত সাইকো অনকলজি আৰু ডায়েটিচিয়ানৰ ডায়েটৰ ওপৰত লৈছোঁ বেচিকেলি। তো সাইকো অনকলজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কাৰণ যেতিয়া কেঞ্চাৰ শব্দটো ওলায় প্ৰত্যেকজন মানুহৰে মনৰ ভিতৰত এটা শংকা থাকে, লাগিলে মানুহজন যিমানে সাহসী নহওক। তো যেতিয়া কেঞ্চাৰৰ ডায়েগনচিছ হয় সেইটো টাইমত মানুহজনক বা মানুহগৰাকীক মনোবল জগোৱাটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। তো সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে সাইকো অনকলজি বিষয়টো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট,
আৰু ইনিচিয়েল যেটো প্ৰথমৰ যেটো স্ট্ৰেছফুল সময় সেই সময়খিনি যাতে পেচেণ্টজনে বা পেচেণ্টগৰাকীয়ে ভালকে নেভিগেট কৰিব পাৰে। তো সেইকাৰণে সাইকো-অনকলজিষ্ট এইটো মাতিছোঁ আজি। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় যে এই যেটো ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছ সেই ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰচেছত আমাৰ সমাজৰ পেচেণ্ট কেঞ্চাৰ পেচেণ্টক অলপমান অৱহেলা কৰা দেখা যায় বহুত ক্ষেত্ৰত। পেচেণ্টগৰাকী ডায়েগনচিছ হোৱাৰ পিছত অলৰেডি মানসিকভাৱে বহুত ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল হয়। তাৰোপৰি যদি সমাজখনেও বা ঘৰখনে বা নেইবাৰে ঘৰৰ ওচৰ পাজৰৰ মানুহে যদি আউটকাষ্ট বুলি যিটো কয় ন ইংৰাজীত যে অৱহেলা কৰা, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাও দেখিব পোৱা যায়। তো সেইখিনি হ'লে মানুহগৰাকীৰ মনোবল আৰু কমি যায়। তো সেইটো কাৰণে সাইকো-অনকলজিষ্ট বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। দ্বিতীয় কথা ডায়েট। তো মই লগ পোৱা প্ৰত্যেকজন পেচেণ্ট বা পেচেণ্টৰ কেয়াৰ গিভাৰে डाइटर কথা এবাৰ নহয় এবাৰ হ'লেও সোধে। तो डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट का बहुत महत्व है कैंसर का इलाज में। तो क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो 2 मिनट या 3 मिनट का ओपीडी विजिट में सब कुछ बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान नहीं है। तो इसलिए डाइटिशियन का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैक्सिमम हम देखते हैं जो हेड एंड नेक कैंसर और इसोफेगस का कैंसर असम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में काफ़ी प्रिवेलेंट है। ये हेड एंड नेक कैंसर और इसोफेगस का कैंसर और बेसिकली जीआई कैंसर तो speak। तो ये सब कैंसर में क्या होता है, जो खाना जो नली है, जो खाना निकलने का जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए काफ़ी दुर्बल हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो इसलिए डाइट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि बीमार इलाज के बारे में पूछे या ना पूछे, लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये तो ज़रूर पूछते हैं। तो इसलिए हमारे पास हर साल होती है, तो वो बताएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एजुकेशन ये क्यों जरूरी है एक वेबिनार करना। तो मरीज को जो भी बीमारी है कैंसर के स्पेसिफिकली हर बीमार में, चाहे वो लांग का बीमार हो, चाहे वो लिवर का बीमार हो, चाहे वो कैंसर हो, तो हर मरीज को अपनी बीमारी के बारे में एक जानकारी रखना ज़रूरी है। क्योंकि जब नॉलेज रहता है तभी हम ये मुश्किल स्थिति से नेविगेट कर पाएंगे। और आजकल इतना ऑप्शन है तो अनलेस अगर हमको पता नहीं है कि बीमारी क्या है, कैसे इलाज होता है इसका, क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, क्या क्या साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट्स को क्या ध्यान रखना है, साइड इफेक्ट को कैसे मैनेज करना है, हम हम इलाज से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, ये सब चीज़ें जो है ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग कैंसर के बारे में जाने, कैंसर के बारे में पढ़े और एक राइट चॉइस जो होता है ना, तो इलाज का खुद ले पाए कि हमको किस तरह से जाना है। तो ये जो कैंसर के लिए जो बैटल है ये इस जंग में, तो इट्स नॉट बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट। डॉक्टर पेशेंट केयर गिवर एक तरफ है और कैंसर एक तरफ है। जब हम एक साथ जुड़ेंगे इस युद्ध में तो तभी हम विजयी हो पाएंगे। आई थिंक मैं इधर ही स्टॉप करूँगा, आगे संगीता विल मॉडरेट और एट द एंड ऑफ लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आपका जो भी सवाल है पूछ सकते हैं। अबाउट यू संगीता। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो महत्वपूर्ण बातें और मार्गदर्शन हमें दिया उसके लिए हम आभारी हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और मैं मानसी गुप्ता को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो एक जूनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट है। वो 2024 से जूनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में फोरबेस केयर से जुड़ी हुई है। मानसी लोगों की भावनाओं, व्यवहार और सामाजिक परेशानियों को समझकर उनकी मदद करती है ताकि वे इस सफर में हिम्मत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ सके। आपका स्वागत है मानसी। इतने अच्छे से परिचय के लिए धन्यवाद संगीता। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं मानसी गुप्ता, जूनियर साइको ऑन्कोलॉजिस्ट फोरबेस केयर से।
आज मैं यहाँ आप सबके साथ अपनी स्लाइड्स की मदद से कैंसर के दौरान मानसिक मजबूती, जिसमें तनाव, डर और थकान को संभालने के उपाय पर बात करूंगी। स्लाइड में बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि कैंसर के इलाज में मानसिक मजबूती महत्वपूर्ण क्यों होती है। कैंसर का इलाज सिर्फ शारीरिक बीमारी को ठीक करने तक सीमित नहीं है। ये हमारी मानसिक, सामाजिक और व्यवहारिक सेहत पर भी गहरा असर डालता है। जब हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं तो हम इलाज की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और साहस के साथ कर पाते हैं। कुछ मानसिक पहलू, जैसे कि कैंसर के इलाज के दौरान कई बार चिंता, डर या निराशा महसूस होना सामान्य है, लेकिन इन भावनाओं को संभालना बहुत जरूरी है। अगर मन शांत और सकारात्मक रहेगा तो इलाज को झेलना बहुत आसान हो जाता है। कुछ शारीरिक पहलू भी, जैसे मानसिक मजबूती सीधे हमारे शरीर पर भी असर डालती है। रिसर्च ने भी यही दिखाया है कि सकारात्मक सोच और तनाव प्रबंधन तकनीकें आपका दर्द और थकान दोनों को कम कर सकती है। कुछ सामाजिक पहलू, इस समय परिवार और दोस्तों का साथ भी बहुत मायने रखता है। जब मन ठीक होता है तो हम अपने इलाज से जुड़े निर्णय बेहतर ढंग से ले पाते हैं, दवाइयां समय पर लेते हैं और जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव अपनाते हैं। इसीलिए एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना मददगार होता है। हम आपको ये समझने में मदद करते हैं कि आप कैसे अपनी भावनाओं को संतुलित रखते हुए अपने जीवन में उम्मीद व हिम्मत बनाए रखें। और हाँ, सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य को भी सहयोग की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि वह भी इस यात्रा में आपके साथ ही चल रहे होते हैं। ऐसे ही अब हम अगली स्लाइड में बढ़ते हुए बात करेंगे कुछ भावनात्मक चरणों में। कैंसर का नाम सुनना ही कई बार हमारे लिए बहुत भारी होता है। यह हमारे मन और भावनाओं को भी गहराई से छूता है। आज मैं आपसे उन भावनात्मक चरणों के बारे में बात करूंगी जिनसे अधिकतर लोग कैंसर के दौरान गुजरते हैं, जिसमें कि पहला आता है अस्वीकारता, जिसको हम डिनायल भी कहते हैं। जब हमें पहली बार कैंसर का पता चलता है तो अक्सर हमारा मन कहता है, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अस्वीकारता हमें समय देता है कि हम धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार करने की ताकत जुटा सके। इसी में दूसरा आता है क्रोध। इसके बाद कई बार गुस्सा आता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने क्या गलती की। इस गुस्से को महसूस करना गलत नहीं है, ये हमारी पीड़ा और डर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। अगले में तोलमोल हम करने लगते हैं। फिर हम मन ही मन सोचते हैं, अगर मैं ये कर लूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, या भगवान मुझे ठीक कर दो, मैं बदल जाऊंगा। ये ख्याल हमारी उम्मीद और नियंत्रण की तलाश को दर्शाता है। ऐसे में कभी कभी थकान, उदासी और निराशा हमें घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया है। उदासी का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, सिर्फ ये है कि आपका मन का ये एक बोझ है जिसे साझा करने से आप इसको हल्का कर सकते हैं। आखिर में इन 4 चरणों के बाद आखिर में आता है स्वीकारता, और अंत में हम धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार करना सीखते हैं। स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं होता, बल्कि इसका सिंपल अर्थ ये होता है कि हाँ, मुझे कैंसर है, लेकिन मैं इसका सामना करूंगा। यही स्वीकारता हमें साहस देती है और हमें जीवन को एक नए नजरिए से जीना सिखाती है। इन सभी चरणों से गुजरना बिल्कुल सामान्य होता है। हर कोई इनसे अपने अपने तरीके से गुजरता है और कभी कभी ये चरण आगे पीछे भी हो सकते हैं। ऐसे ही हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि कैंसर के दौरान आपको तनाव कैसे महसूस होता है। जैसे कि हमने देखा कि कैंसर का इलाज सिर्फ दवाइयां और ऑपरेशन का सफर नहीं है, इसके साथ साथ हमें मानसिक और भावनात्मक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है, और इन्हीं में से सबसे बड़ा होता है तनाव। जैसे मन में सवाल उठना, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम कैंसर का पता चलता है तो मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग खुद को दोष देते हैं या भगवान से सवाल पूछते हैं। यही उलझन उनकी अविश्वास और तनाव को बढ़ाती है। कुछ आर्थिक संकट भी महसूस होता है। इलाज की लागत, आपकी दवाइयां, अस्पताल के खर्चे और कामकाज रुक जाने की वजह से जो आर्थिक दबाव पड़ सकता है, ये चिंता भी मानसिक तनाव का बहुत बड़ा कारण बनती है। रिश्तों में भी कई बार तनाव आता है। कभी कभी बीमारी के चलते पति पत्नी, माता पिता या बच्चों के बीच गलत फहमियां या दूरियां आ जाती हैं। मरीज सोचता है कि वह परिवार पर बोझ है, और परिवारजन को भी अपनी चिंता सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। कई बार अभी भी सामाजिक बहिष्कार होता है। समाज में अभी भी कैंसर को लेकर कई गलत धारणाएं हैं,
लोग दूरी बनाने लगते हैं या असंवेदनशील बातें करने लगते हैं। इससे मरीज अकेलापन महसूस करता है और खुद को अलग कर लेता है। तनाव का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि ये आपके साहस का ही एक हिस्सा होता है और इसे पहचान कर ही आप इसका सामना सही ढंग से कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि डर का क्या रोल होता है कैंसर के दौरान। कैंसर का नाम सुनते ही हमारे मन में कई तरह के डर आते हैं, जैसे कि क्या मैं ठीक हो पाऊंगा, कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये सभी डर बिल्कुल सामान्य होते हैं। ज्यादातर मरीज यही सोचते हैं और महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, डर को दबाने से वह और बढ़ता है। इसी में आप कुछ छोटे कदम उठा के इस डर को पहचानना सीख सकते हैं। जैसे कि पहला कदम आप उठा सकते हैं कि आप डर को अपने पहचानने की कोशिश करते हुए उसे स्वीकार करें। इसमें आप अपने आप से कहें, हाँ मुझे डर लग रहा है। दूसरा सिंपल कदम आप उठा सकते हैं खुलकर बात करना। अपने परिवार, दोस्तों या डॉक्टर से अपने डर के बारे में शेयर करें। तीसरा कदम होता है फैक्ट्स पर ध्यान देना। इंटरनेट की हर बात सच नहीं होती। सही जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से ही बात करें। और सबसे जरूरी होता है अपने मन का ख्याल रखना। थोड़ा सा योग, ध्यान, गहरी सांस लेना या सिर्फ अपनी पसंद का संगीत ही सुनना, ये सब डर को कम करने में बहुत हद तक मदद करता है। अब हम अगली स्लाइड में बात करेंगे एक बहुत आम अनुभव की, जो कि है थकान। कैंसर के दौरान थकान सिर्फ शारीरिक नहीं होती, ये मन, सोच और भावनाओं को भी प्रभावित करती है। जैसे कि कभी कभी पेशेंट्स को लगता है कि उनका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास कम हो रहा है। बहुत से लोग महसूस करते हैं ये कि वह पहले जैसे मजबूत नहीं रहे, जिसमें बाल झड़ना, शरीर में बदलाव, बार बार अस्पताल जाना, ये सब हमें कमजोर और दूसरों से अलग महसूस करा सकता है। याद रखिए, आपका मूल्य सिर्फ आपके शरीर से नहीं होता, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व से तय होता है। कभी कभी गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है। जब हम थके होते हैं तो छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ सकता है। ऐसे में गहरी सांस लेना, थोड़ी देर अकेले बैठना या अपने मन पसंदीदा व्यक्ति से खुलकर बात करना गुस्से को कम कर सकता है। कभी कभी हमें एक चिंता सताती है, क्या हम काम पर वापस लौट पाएंगे। बहुत लोग यही सोचते हैं कि क्या मैं अपने काम पर वापस जा पाऊंगा, क्या मैं पहले जितना सक्षम रहूंगा। ये चिंता भी एकदम सामान्य है, लेकिन छोटे छोटे कदमों में शुरुआत करते हुए, जैसे कि आप घर पर अपने हल्के फुल्के काम, ऑनलाइन मीटिंग या अपनी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे करने से आपका धीरे धीरे शरीर और मन दोनों तैयार होने लगते हैं। कभी कभी पेशेंट्स को सामाजिक अकेलापन भी लगता है। कभी कभी लगता है कि लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हम झेल क्या रहे हैं, इसीलिए हम उनसे दूर होने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखें, दूसरों से जुड़ाव आपकी ऊर्जा ही बढ़ाता है। आप चुन सकते हैं कि आपको किसके साथ समय बिताना है। थकान को नजरअंदाज मत करें, ये आपके शरीर का सिग्नल ही है कि उसे आराम और देखभाल दोनों की जरूरत है। छोटे छोटे ब्रेक, संतुलित नींद, हल्की गतिविधियां और अपने मन की बात शेयर करना है, ये सब मिलकर आपकी थकान को संभालने में बहुत मदद करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि अपने तनाव को और बेहतर ढंग से हम कैसे संभाल पाएंगे। इसमें आप देखेंगे कुछ 3-4 हमने तकनीकें बताई हैं, जिसमें कि पहला होता है अपना माइंडफुल ब्रेक ले। दिन में 2-3 बार सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके, आंखें बंद करें और अपने शरीर व सांस पर ध्यान दें। ये छोटा सा ब्रेक आपके मन को रीसेट कर देता है और आपको फिर से ऊर्जा देता है। अगला आप ट्राई कर सकते हैं गहरी सांस लेना। तनाव के समय अक्सर हमारी सांसें छोटी हो जाती हैं। दिन में कुछ बार गहरी सांस लेना, धीरे धीरे छोड़ना, ये आपके दिमाग का सिग्नल देता है कि सब ठीक है और शरीर आपका रिलैक्स होने लगता है। कभी कभी आप सामाजिक सहयोग लेने की भी कोशिश करें। अपने परिवार, दोस्तों या किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़ें। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को अपनी बात बताना, ये अकेलेपन को कम करता है और मन को भी हल्का कर देता है। तनाव प्रबंधन तकनीकें भी आप अपना सकते हैं, जिसमें कि आप मानसिक सहयोग ले सकते हैं। अगर तनाव बहुत ज्यादा है तो काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट या सपोर्ट ग्रुप से मदद लें। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक सेहत का ध्यान रखने का एक साहसी हिस्सा होता है। इसी में हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हम अपने डर को संभालने के लिए क्या तकनीकें अपना सकते हैं।
जैसे कि हमने देखा कि डर को पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इसे संभालने हम अच्छे से सीख सकते हैं। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं। पहला होता है कि अपना फोकस सही चीजों पर करें। सोचिए, जो चीजें आपके हाथ में हैं और जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, बस उन पर ही ध्यान दें। बाकी चीजें जिन पर आपका कंट्रोल ही नहीं है, उन्हें जानिए। ये डर को बहुत हल्का कर देता है। अगला होता है गहरी सांस लें। जब डर या बेचैनी बढ़ जाती है तो अपनी सांस पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। धीरे धीरे 4 गिनती तक सांस को अंदर लें और 4 गिनती तक ही सांस को बाहर छोड़ें। सिर्फ 2-3 बार ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होने लगता है और प्रेजेंट में आने लगता है। आप चाहे तो कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक भी अपना सकते हैं। ये बहुत आसान है, बस अपने आसपास को देखें और ध्यान दें। जिसमें कि एक सिंपल टेक्निक होती है 5 4 3 2 1। इसमें हर एक नंबर एक चीज दर्शाता है। जैसे कि 5 दर्शाता है कि आपको किसी 5 चीजें जो आप अपने आसपास में देख सकते हैं, उनको देखकर उनको नाम देना है। ऐसी ही कुछ 4 चीजें जो आप अपने आसपास में छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ ऐसी 3 चीजें जो आप सुन सकते हैं, 2 चीजें जिनकी आप सुगंध ले सकते हैं, और आखिर में एक दर्शाता है कि कोई ऐसी चीज जिसका आप स्वाद ले सकते हैं। ये तकनीक अपनाने से आपका जो दिमाग है वह वर्तमान में आने लगता है और आपका डर एकदम से कम हो जाता है। अगला आता है बहुत ही सिंपल, डर को लिखें और नाम दें। जब डर बहुत बड़ा लगे उसे लिख लें। ये डर को हल्का कर देता है क्योंकि अब आप उसे पहचान सकते हैं और उससे दूरी बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अगली स्लाइड में कि हम थकान को लेकर उस पर कैसे अपनी तकनीकें अपना सकते हैं। कैंसर का इलाज थकान लेकर आता है, ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर ही इस थकान को कम कर सकते हैं और अपनी जो ऊर्जा है उसको वापस पा सकते हैं। इसमें पहला आता है, दिन में कम से कम 30 मिनट चलिए। आपको जॉगिंग या जिम करने की जरूरत नहीं है, बस हल्की फुल्की वॉक ही काफी होती है। इसमें आप छोटे छोटे हिस्सों में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप दिन में 10-10 मिनट 3 बार चल सकते हैं, या तो आप दिन में 15-15 मिनट 2 बार चल सकते हैं। अपना नियमित सोने और जागने का समय भी तय कीजिए। थकान तभी ठीक होती है जब आपका शरीर सही तरीके से रेस्ट करता है। हर दिन लगभग एक ही समय पर सोएं और उठने की कोशिश करें। स्क्रीन टाइम सोने से पहले कम करें ताकि नींद गहरी और सुकून भरी हो। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से जो आपकी मांसपेशियां हैं उनकी जो अकड़न होती है वह कम होती है। शरीर रिलैक्स महसूस करता है और थकान भी घटती है। कोशिश करें कि आप अपनी देखभाल खुद करें। सेल्फ केयर बहुत जरूरी है। वो काम कीजिए जो आपका अच्छा महसूस कराए। जैसे कि चाहे आप किताब पढ़ सकते हैं, गाना सुन सकते हैं, या सिर्फ अपने लिए चाय बना सकते हैं। हो सके तो फुल बॉडी का काम भी करें। प्रकृति के साथ समय बिताना मन को भी और आपके शरीर को भी रिलैक्स करता है। सिर्फ पौधों में पानी डालना, बागवानी करना थकान और उदासी दोनों को कम कर सकता है। थकान से लड़ने का मतलब है अपने शरीर और मन को धीरे धीरे रिचार्ज करना। छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद पर दबाव मत डालिए। आपका शरीर जो है वो हर दिन ठीक होने की कोशिश कर रहा है, बस उसे थोड़ा सहारा दीजिए। अब आगे बढ़ते हुए अगली स्लाइड में हम कुछ सामान्य मानसिक भ्रमों की बात करेंगे जो हम में से कई लोगों को होते हैं, खासकर जब हम कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक मिथ है, यानी कि गलत धारणा ये है कि तनाव कम करने के लिए मुझे बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ेंगी, जैसे कि ध्यान लगाना, योग या घंटों लंबी मेडिटेशन। हमारा दिमाग अक्सर सोचता है कि अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो हमें किसी पहाड़ पर जाना होगा, लंबा मेडिटेशन करना होगा या फिर, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ छोटे छोटे बदलाव ही, जैसे कि गहरी सांस लेना, सुबह की धूप में टहलना, या अपनी भावनाओं को लिख लेना या उन्हें जाहिर करना, ये भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। इसीलिए अगर आप खुद को थका हुआ या तनाव में महसूस करें तो ये सोचकर मत रुकिए कि मेरे पास ध्यान करने का समय ही नहीं है। बस दिन के 5 मिनट खुद के लिए निकालिए और देखिए कैसा बदलाव आता है। कैंसर के इलाज के दौरान भावनात्मक देखभाल भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि शारीरिक देखभाल। ऐसे ही हम अगली स्लाइड में एक और गलत धारणा के ऊपर बात करेंगे।
इस सफर में सिर्फ मरीज ही नहीं बल्कि पूरा परिवार साथ चलता है, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और कभी कभी आर्थिक रूप से भी। इस स्लाइड में एक गलत धारणा ये लिखी हुई है कि मुझे अपनी भावनाएं छुपानी चाहिए वरना मरीज जो है वो परेशान हो जाएगा। परिवार वाले सोचते हैं कि हम अगर अपनी थकान, डर या चिंता जाहिर ही ना करें तो मरीज ठीक रहेगा, और अगर हम जाहिर करेंगे तो वह टूट जाएंगे। लेकिन असलियत कुछ और है। सच्चाई ये होती है कि आपकी ईमानदार और शांत बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाती है। अपनी चिंता साझा करना भी मददगार ही है। जब हम अपने मन की बात खुलकर साझा करते हैं बिना किसी आरोप या शिकायत के, तो हम एक दूसरे के और करीब आते हैं। मरीज को भी यही भरोसा मिलता है कि वह अकेला नहीं है और ये कि परिवार भी अपना जज्बात जाहिर कर सकता है। कई बार मरीज खुद को बोझ समझने लगता है, और अगर परिवार हर समय मजबूत बनने की कोशिश करता है तो बिल्कुल ही। लेकिन जब आप उनसे कहते हैं कि हाँ मैं भी डरता हूँ लेकिन हम साथ हैं, तो वह डर को आधा ही कर देता है। अगली स्लाइड में हम एक और गलत धारणा की ओर ध्यान देंगे। अक्सर लोग मानते हैं कि मरीज को हमेशा आराम करना है और किसी भी एक्टिविटी से बचना है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हर वक्त आराम करना ना तो आपके शरीर के लिए और ना ही मन के लिए फायदेमंद होता है। सच्चाई ये होती है कि आपकी हल्की फुल्की एक्टिविटी जैसे कि आपका टहलना, योगा या स्ट्रेचिंग, अगर आप डॉक्टर की सलाह से करें तो ये थकान को कम करती है और आपका जो मूड है उसको भी बहुत बेहतर करती है। रिसर्च ने भी यही साबित किया है कि नियमित हल्की फुल्की गतिविधियां या ना सिर्फ आपके शरीर को ताकत बनाए देती हैं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर डालती हैं। मरीज का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ता है और वे ज्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आराम ही सबसे बेहतर है तो एक बार अपने डॉक्टर या साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर बात करें। वह आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी हल्की फुल्की एक्टिविटी सुरक्षित है और जरूरी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही होता है कि हम अपने पेशेंट का संतुलन बनाए रखें। ऐसे ही अगली स्लाइड में हम एक और बड़ी गलत धारणा की ओर देखेंगे कि लगता है कि मैं सब कुछ अकेले संभालूं तभी मैं एक अच्छा केयर गिवर कहलाऊंगा। कई बार देखभाल करने वाले ऐसा ही सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है बल्कि एक ताकत की निशानी है। जब हम अपने सपोर्ट सिस्टम से जुड़े रहते हैं, चाहे वह आपका परिवार हो, आपका दोस्त हो, आपका पर्यवेक्षक काउंसलर हो, तो ये ना सिर्फ केयर गिवर के लिए बल्कि आपका जो मरीज है उनके लिए भी बेहद मददगार होता है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। आपकी मानसिक और भावनात्मक सेहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि पेशेंट की। मदद मांगने से आपका बोझ ही हल्का होता है और अपने प्रियजन के लिए भी आप और बेहतर सहयोग दे पाते हैं। तो अगली बार अगर आप थकान को महसूस करें और आपको लगे कि सब कुछ भारी हो रहा है तो बेझिझक मदद मांगे। यही आपकी और मरीज की भलाई के लिए सही कदम है। इसी के साथ मैं अपनी स्लाइड्स यहाँ खत्म करती हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी उन लोगों का जो हमारे साथ आज जुड़े हैं, और मैं थैंक यू करती हूँ संगीता आपका जो आपने मेरे को आज ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू। धन्यवाद मानसी, आपने समझाया कि इलाज के समय मन को ठीक रखना कितना जरूरी है और साथ ही साथ कैंसर केयर में ऑन्कोसाइकोलॉजी की भूमिका क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अपने अगले एक्सपर्ट की ओर बढ़ना चाहती हूँ। मुझे खुशी है कि मैं आपको मिस हर्षा जोशी से मिलवा रही हूँ जो फोरबेस केयर में ऑन्को डाइटिशियन है। हर्षा ने पोषण और डायटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उन्हें कैंसर से जुड़ी न्यूट्रिशन की खास ट्रेनिंग भी मिली है। फोरबेस केयर में हर्षा मरीजों के इलाज के दौरान खान पान से जुड़ी दिक्कतें, साइड इफेक्ट्स और अन्य बीमारियों को संभालने में मदद करती है। अब मैं हर्षा को बुलाना चाहूंगी। इतने अच्छे परिचय के लिए धन्यवाद संगीता जी। सभी को मेरी नमस्कार। आज के वेबिनार में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं हर्षा, फोरबेस केयर की एसोसिएट ऑन्को डाइटिशियन, और पिछले कुछ वर्षों में मुझे कैंसर रोगियों के साथ नजदीकी रूप से काम करने का सौभाग्य मिला है। आज की चर्चा के उद्देश्य भ्रम को दूर करने, बाया को दूर करने और आपको ठोस उपकरण प्रदान करने में मदद करने की, जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए घर ले जा सके। आइए शुरू करते हैं। कैंसर केयर में पोषण केवल खाने के बारे में नहीं है, यह सीधे इलाज की सफलता, रिकवरी और जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है।
कैंसर और उसके इलाज, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और टारगेटेड थेरेपी अक्सर खाने पीने की आदतों और पाचन को प्रभावित करते हैं। सामान्य समस्याएं जो शामिल है, भूख की कमी होना, थकान या मेटाबॉलिज्म में बदलाव के कारण ये हो सकता है। मतली और उल्टी, ये कीमो या रेडियोथेरेपी या दवाइयों के दुष्प्रभाव हो सकता है। मुंह में छाले आना, इसको ओरल म्यूकोसाइटिस भी बोलते हैं, दर्दनाक घाव जो निगलने को मुश्किल बनाते हैं। दस्त या कब्ज होना, इलाज, दवाइयों या कम गतिविधि के कारण ये हो सकता है। वजन घट जाना, जब शरीर में ऊर्जा की मात्रा कम होती है तो शरीर ऊर्जा के लिए हमारे मसल्स को तोड़ने लगती है, जिसके वजह से वेट लॉस हो सकती है। और स्टेरॉइड्स के कारण अचानक वजन बढ़ जाना, ये नॉर्मली हार्मोन थेरेपी के दौरान होती है, जिससे पानी बॉडी में रिटेन या अक्यूमुलेट होती है या और फैट हमारी बॉडी में जमा होने लगती है। इसके वजह से वेट बढ़ने लगती है। स्वाद व गंध में बदलाव आना, भोजन दांतों जैसा कड़वा या बेस्वाद लग सकता है, जिसके वजह से खाना खाने का मन नहीं होता है। यदि इन चुनौतियों को हम समय पर संभालना चाहें तो ये अक्सर माल न्यूट्रिशन में बदल सकती है। स्टडी से पता चलता है कि 30 to 80% कैंसर रोगी कुछ हद तक माल न्यूट्रिशन का अनुभव करते हैं। खराब पोषण के परिणाम कई सारी है, जैसे कि इलाज में देरी या रुकावट आना, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी सहन करने की क्षमता में कमी होना, संक्रमण का जोखिम बढ़ना और घाव बनने में देरी हो जाना, अस्पताल में रहने की अवधि लंबी हो जाना और इसके वजह से खर्चा बढ़ जाना, ऊर्जा, मूड और जीवन की गुणवत्ता में भी गिरावट आ सकती है। तो ये सब में ऑन्कोडायटीशियन का रोल क्या है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक ऑन्कोडायटीशियन का काम मेडिकल ट्रीटमेंट और मरीज की भलाई के बीच रिक्ति को भरने का है। हम ऑन्कोडायटीशियंस आपके पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, वर्तमान बीमारी या बीमारियों, आहार पैटर्न, प्रस्तुत रिपोर्ट और मौखिक चर्चा के आधार पर आपके कैंसर उपचार के दौरान और उसके बाद आपके जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक संपूर्ण आहार संबंधी सुझाव देंगे। हम ऑन्कोडायटीशियन डाइट के माध्यम से खाद्य सेवन बढ़ाने, स्वास्थ्य वजन बनाए रखने, असामान्य रक्तमान दूर करने, सही पकाने के तरीके सुझाने और कैंसर या उपचार के प्रभावों को संभालने के लिए विशेष मार्गदर्शन देते हैं। पोषण कैंसर देखभाल में दवा की तरह है। यह सुनिश्चित करता है कि रोगी केवल इलाज पूरा ना करे बल्कि ताकत, ऊर्जा और आशा बनाए रखे। अगली स्लाइड में कैंसर डाइट से जुड़े कुछ मिथ पर गौर करते हैं। कैंसर डाइट को लेकर कई सारी मिथ्स और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, जिसको हम गलतफहमी भी बोल सकते हैं। आइए अगली स्लाइड्स में ऐसे कुछ कैंसर मिथ्स के बारे में देखते हैं। चीनी कैंसर को बढ़ावा देती है। हमारी बॉडी की सभी सेल्स ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि फल या चावल खाने से कैंसर तेजी से बढ़ेगा। समस्या रिफाइंड शुगर से है, जो वजन बढ़ाने और सूजन बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक और मिथ के बारे में देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कैंसर पेशेंट्स के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट स्लाइड। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ऊर्जा सोर्स है। भारतीय जेनेटिक्स और खान पान को ध्यान में रखते हुए चावल आसानी से पचते हैं। कैंसर मरीजों के लिए ऊर्जा बनाए रखने के लिए संतुलित कार्बोहाइड्रेट का सेवन जरूरी है। रिफाइंड शुगर हमें अवॉइड करना पड़ेगा। नेचुरल सोर्सेज जैसे चावल, रोटी, दलिया और मिलेट सुरक्षित और बेनिफिशियल भी है। ये मिथ एक कॉमन मिथ है। कैंसर रोगियों को फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि उनमें चीनी होती है, पर फलों की शुगर प्राकृतिक होती है और वे विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करते हैं, जो रिकवरी में मदद करते हैं। मौसमी फल अच्छी तरह धोकर और सुरक्षित तरीके से खाए जाएं तो कैंसर मरीजों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक होते हैं। फलों में मेनली फ्रक्टोज होता है, साथ ही प्राकृतिक अनुपात में कुछ ग्लूकोज और सुक्रोज भी होता है, पर रिफाइंड शुगर कंप्लीटली सुक्रोज से बनाई हुई होती है, जिसमें से अन्य सभी पोषक तत्व निकाल गई होगी। इसके लिए इसको रिफाइंड शुगर बोलते हैं। फलों में फाइबर, विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स होते हैं।
ये चीनी के अब्जॉर्प्शन को धीमा करते हैं और कैंसर व सूजन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। रिफाइंड चीनी केवल काली कैलोरी देती है, इसमें से कोई सुरक्षात्मक पोषक तत्व नहीं मिलती है हमें। और फल सुरक्षित और लाभकारी भी है। फलों से मिलने वाली शुगर और रिफाइंड शुगर अलग है। फल को छोड़ना जरूरी नहीं, रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना पड़ेगा। मिठाइयाँ और शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में एक और मिथ के बारे में देखते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थ और जूस सर्वोत्तम है। खाद्य पदार्थ में इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है जब रोगी की इम्यूनिटी कम हो। हल्का पकाना और अच्छी तरह धोकर खाना ज्यादा सुरक्षित और समान रूप से पौष्टिक होता है। कच्चे खाद्य पदार्थ जैसे कि सैलेड और फ्रेश स्वास्थ्य दिखाई दे सकते हैं, पर कैंसर मरीजों विशेषकर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के दौरान एक जोखिम पैदा कर सकते हैं। उपचार के दौरान इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए शरीर छोटे बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट जैसे कि ई कोलाई, सल्मोनेला, लिस्टेरिया से होने वाले संक्रमणों से अधिक प्रभावित होते हैं। भोजन से हमें सुरक्षा और पोषण दोनों मिलनी चाहिए। अच्छी तरह धोना, छिलना और हल्का पकाना सुरक्षित ऑप्शंस है। नेक्स्ट स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट मिथ के बारे में देखते हैं। यदि हम 100 ग्राम हल्दी खाते हैं तो हमें 100 ग्राम कर्क्यूमिन मिलेगा। हल्दी में कर्क्यूमिन कुल वजन का केवल 2 to 9% होता है। इसका अर्थ है 100 ग्राम हल्दी में केवल 2 से 9 ग्राम का कर्क्यूमिन होता है। बचे हुए हिस्से में अन्य यौगिक जैसे फाइबर, तेल और स्टार्च होते हैं। साथ ही कर्क्यूमिन को बॉडी में अब्जॉर्ब होने के लिए पिपरिन, जो ब्लैक पेपर में होती है, उसकी जरूरत होती है। इसलिए केवल बड़ी मात्रा में हल्दी खाने से कर्क्यूमिन की उच्च मात्रा नहीं मिलेगी और अत्यधिक सेवन से पेट परेशान भी हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में एक कॉमन मिथ के बारे में देखते हैं। डेयरी उत्पाद कैंसर में हानिकारक है, पर सच्चाई ये है कि डेयरी प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन का एक अच्छा सोर्स है और सीमित मात्रा में डेयरी आहार में शामिल की जानी चाहिए। डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध, दही, पनीर और छाछ अक्सर कैंसर देखभाल में गलतफहमी का कारण बनते हैं। जब तक किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस या विशेष मेडिकल प्रतिबंधन ना हो, डेयरी वास्तव में फायदेमंद हो सकती है। डेयरी प्रोटीन से भरपूर है, कैल्शियम और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। विटामिन और मिनरल्स भी हैं जैसे कि B12, रिबोफ्लाविन और पोटेशियम। शोध से पता चलता है कि डेयरी उत्पादों की सीमित मात्रा कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाती। वास्तव में डेयरी उत्पादों को संतुलित आहार में सुरक्षित रूप से शामिल किया जा सकती है, सिवाय उन मामलों में जहां लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध प्रोटीन एलर्जी या डॉक्टर द्वारा मना की गई। डेयरी उत्पाद हानिकारक नहीं है यदि इसे मॉडरेट मात्रा में डाइटिशियन की गाइडेंस के साथ लिया जाए तो यह पोषक तत्वों का एक वाइटल सोर्स हो सकता है। आइए अब अपने महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। आप में से कई लोगों के मन में हमेशा यह संदेह रहता होगा कि क्या मैं सही चीज खा रही हूँ या मैं सही खाना दे रही हूँ। आज हम जिन टूल्स के बारे में देखेंगे वो आपको बहुत मदद करेगा। पहला टूल यह है कि बैलेंस्ड प्लेट मेथड। संतुलित प्लेट एक सरल विजुअल उपकरण है जो यह इंश्योर करता है कि प्रत्येक भोजन में सभी प्रमुख पोषक तत्व शामिल हो, जिससे कैंसर रोगियों के लिए उपचार संबंधी चुनौतियों के बावजूद भी अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो सके। हमारे आधे प्लेट सब्जियां और फल से भरपूर होना चाहिए। रंगों में विविधता लाने का लक्ष्य रखना चाहिए। हरा, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी और हर रंग अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स का प्रदान करते हैं जो हमारी सेल्स को रक्षा करने, सूजन कम करने और रोगी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करने में हेल्प करती है। इसमें से हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलता है, जैसे कि नींबू, अमरूद और कैप्सिकम में विटामिन सी है, इम्यूनिटी में ये मदद करती है। गाजर, पालक, कद्दू में विटामिन ए है, ये हड्डी, त्वचा और म्यूकोसल स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, बीन्स में फोलेट और पोटेशियम है। सेल रिपेयर और तरल संतुलन के लिए ये बेनिफिशियल है। फाइबर भी मिलता है, पाचन में मदद, कब्ज घटाने में सहायक और आंत के स्वास्थ्य को बनाए रखने में फाइबर वेरी हेल्पफुल है। और हमारे प्लेट के 1/4 पोर्शन प्रोटीन होनी चाहिए, तो कम वसा वाले और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन को शामिल करना पड़ेगा, जैसे कि दाल, बीन्स, अंडे, मछली, चिकन, पनीर और टोफू। प्रोटीन का महत्व यह है कि
उपचार के दौरान टूटे हुए टिश्यूज और मसल्स को रिपेयर करती है और हमें सार्कोपिनिया से बचाती है। इम्यून सिस्टम का समर्थन करती है, ताकत और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। प्रोटीन रिच फूड आइटम्स के साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलती है। दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, रागी और तिल जैसे प्रोटीन रिच फूड आइटम्स में आयरन होती है, ये अनीमिया में हेल्प करती है। अंडे और बीज में जिंक होती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी और गाह बनने में मदद मिलती है। अंडा, मछली और डायरी प्रोडक्ट्स में विटामिन B12 है, जो हमारी नर्व हेल्थ को और ब्लड सेल्स के लिए आवश्यक होती है। और हमारी 1/4 प्लेट में साबुत अनाज होनी चाहिए। ब्राउन राइस, गेहूं, बाजरा या ज्वार से बनाई हुई रोटियां, ओट्स, किनोवा आदि शामिल आप कर सकते हैं। साबुत अनाज का रोल यह है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं, शरीर का प्राथमिक ऊर्जा सोर्स है। धीमे पचने वाले कार्ब्स ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं और थकान कम करते हैं। फाइबर भी है जो डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। इसमें से हमें विटामिन और मिनरल्स भी मिलता है, जैसे कि मैग्नीशियम, सेलेनियम और बी विटामिन। ये मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा उत्पादन और DNA रिपेयर के लिए महत्वपूर्ण है। और हमारे प्लेट में रेगुलरली 1 to 2 टीस्पून ऑफ हेल्दी फैट ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि नट्स, सीड्स और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। हेल्दी फैट्स कॉन्सेंट्रेटेड ऊर्जा देती है और फैट सोल्यूबल विटामिन को ऑब्जर्व करने में मदद करती है, जैसे कि A, D और K। अगले स्लाइड में साइड इफेक्ट्स और सिम्टम्स के हिसाब से डाइट को कैसे एडजस्ट करें वो देखते हैं। अभी हम सबको पता है डाइट रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है करके, तो आइए अब जाने कि आहार के साथ उन दुष्प्रभावों को कैसे मैनेज किया जाए। मतली के दौरान छोटे छोटे मात्रा में भोजन करें। सूखे क्रैकर्स जैसे कि ज्वार या बाजरे की खाखरा, अदरक वाली चाय मदद करेगा। और ऑयली मसालेदार भोजन अवॉइड करना पड़ेगा। मुंह के छाले के दौरान सॉफ्ट खिचड़ी, दही, चावल, स्मूदी लें और कट्टे व मसालेदार खाने अवॉइड करें। भूख कम होना, इस समय एनर्जी डेंस फूड जैसे बनाना, मैश किए हुए पोटैटोस, नट्स और ड्राई फ्रूट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। कब्ज के दौरान साबुत फल, पपीता, तरल पदार्थ, ओट्स, हल्की गतिविधि और फ्लैक्स सीड्स को रात में खाने से बेनिफिट होगा। दस्त के दौरान केला, चावल, दही और साबुदाना और सूप आप इंक्लूड कर सकते हैं। और तले भुने व चिकने खाद्य पदार्थ से बचना पड़ेगा। स्वाद बदल जाना, इस समय हर्ब्स, हल्के मसाले वाले फूड आइटम्स, स्पाइस वाटर या चाय, नींबू का जेस्ट और खाना बनाने के अलग अलग तरीका अपनाना में मदद करेगा। और कुछ लोगों को यह संदेह होता है कि मुझे दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए और कितना खाना खाना चाहिए। ये नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस प्लान आपको बहुत मदद करेगा और स्पेशली ट्रीटमेंट के दौरान ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमें 3 बारी भोजन के जगह 5 से 6 छोटे छोटे संतुलित भोजन पूरे दिन में फैलाकर खाना चाहिए। ये कैसे हमें मदद करेगा? ऊर्जा को बनाए रखने में मदद मिलती है। छोटे छोटे बार बार खाने से लंबे अंतराल नहीं रहते और थकान कम होती है। यह उन मरीजों के लिए खासकर है जिनको इलाज के दौरान बहुत वीकनेस महसूस होता है। पाचन को सपोर्ट करती है। बड़े भारी भोजन पेट पर भारी पड़ते हैं, छोटे भोजन आसानी से पचते हैं और ब्लोटिंग जैसे तकलीफों कम करते हैं। पोषक तत्वों का बेहतर अवशोषण होता है। शरीर को छोटे हिस्सों में मिलने वाले पोषक तत्व बेहतर तरीके से बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। उपचार संबंधी दुष्प्रभावों को मैनेज करने में मदद मिलती है। मतली, भूख कम होना या स्वाद बदलना, इस समय छोटे छोटे भोजन खाने से भोजन लेना कम तनावपूर्ण हो सकता है। वेट को मैनेज करने में भी ये हेल्पफुल है। कम भूख की समस्या होने वाले पेशेंट्स के लिए बार बार थोड़ा थोड़ा भोजन करने से दिन के अंत तक कैलोरी और प्रोटीन का मात्रा कंप्लीटली मिलती है। ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। यह डायबिटीज पेशेंट्स या स्टेरॉइड लेने वाले पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में फ्लूइड्स के बारे में देखते हैं। हमें 8 से 10 ग्लास पर डे लक्ष्य रखना चाहिए। ये 2 से 2.5 लीटर तक होता है। सुरक्षित स्वच्छ स्रोतों से हमें फ्लूइड शामिल करना पड़ेगा, जैसे कि सादा पानी, सूप, नारियल का पानी और घर में बनाई हुई फ्रूट जूसेस। कैंसर देखभाल में हाइड्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है? ये डिहाइड्रेशन को रोकता है। कीमो या रेडियोथेरेपी या दवाइयां उल्टी, दस्त या अधिक मूत्र को बढ़ा सकती है, जिससे तरल पदार्थ की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो सकती है। साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पर्याप्त तरल पदार्थ कब्ज कम करने,
मतली घटाने और सूखे मुंह को शांत करने में मदद करती है। किडनी व लिवर फंक्शन को मैनेज करती है। ये अंग कीमो दवाओं और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। हाइड्रेशन इन्हें सुरक्षित रूप से निकालने में मदद करती है। संक्रमण से रक्षा मिलती है। एक हाइड्रेटेड शरीर बेहतर सर्कुलेशन बनाए रखता है, जिससे पोषक तत्वों और इम्यून सेल्स को वहां पहुंचने में मदद मिलती है जहां उनकी आवश्यकता होती है। क्या क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। अधिक शुगर वाले पेय पदार्थ, अत्यधिक कैफीन और अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। अगले स्लाइड में प्रोटीन के बारे में देखते हैं। आज शामिल हुए ज्यादातर लोगों को प्रोटीन के बारे में डाउट्स हो सकते हैं, कितना प्रोटीन हमें लेना सही है करके। तो प्रोटीन कैंसर के लिए बहुत जरूरी है। कैंसर के उपचार के दौरान हीलिंग, टिश्यू रिपेयर और स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आवश्यक अमीनो एसिड और नाइट्रोजन प्रदान करते हैं जो शरीर के पूर्ण निर्माण और उसे मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो मिनिमल रिक्वायरमेंट के लिए 0.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए हर दिन के लिए। तो बेसिक जरूरतों पूरी करने में ये मदद करेगा। नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए हमें 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना पड़ेगा। ये हेल्दी अडल्ट और गुड न्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए है। ज्यादा जरूरत तब चाहिए यदि रोगी मालनरिश्ड है, उसका वजन बहुत कम हो गया है, हाइपर मेटाबॉलिज्म है या प्रोटीन की लॉस हो रही है। तो प्रतिदिन हमें 1.5 to 2.5 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट टूल के बारे में देखते हैं। ये विकल्प आपके आहार प्रबंधन में मदद करेगी और नियमित रूप से योजना बनाने में और उसको रेगुलरली फॉलो करने में हेल्प करेगी। खाने पीने और सहनशीलता को ट्रैक करने के लिए फूड डायरी आपको बहुत हेल्प कर सकता है। पहला ऑप्शन वीकली मील प्लानर। हफ्ते भर का भोजन योजना पहले ही प्लान करके रखना, जिससे आखिरी मिनट तनाव कम हो सकता है। सिम्टम डाइट क्विक चार्ट, ये परिवार के सदस्यों के लिए बहुत मदद करेगा। परिवार के सदस्यों के लिए आसान चार्ट है जो बताए कि किस लक्षण पर क्या खाना देना चाहिए। उदाहरण के लिए मतली के दौरान अदरक की पानी और कब्ज के दौरान फ्लैक्स सीड्स। रिवॉर्ड बेस्ड मोटिवेशन हमें इंप्रूव करना है। छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाएं, जैसे तरल पदार्थ का लक्ष्य पूरा करना या दिन में 3 बार फल खाना। भोजन से पार हम क्या क्या कर सकते हैं करके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पोषण अकेले बहुत ताकतवर है, पर रिकवरी और हीलिंग जीवन शैली विकल्पों पर भी निर्भर होती है। शरीर अधिकतर रिपेयरिंग और रीजनरेशन गहरी नींद के दौरान करती है। खराब नींद प्रतिरक्षा को कमजोर कर सकती है और थकान बढ़ा सकती है और भूख को प्रभावित भी कर सकती है। हमें 7 से 8 घंटे की आरामदायक नींद का लक्ष्य रखना चाहिए और दिन में जरूरत हो तो छोटी छोटी झपकी भी आप ले सकते हैं। गर्म दूध और सुखदायक हर्बल वाली चाय बनाने से बेहतर आराम मिल सकती है और हमें हल्की गतिविधि भी करना पड़ेगा। कैंसर के उपचार से थकान, अकड़न और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है। हल्की गतिविधियां जैसे टहलना, योग, स्ट्रेचिंग से रक्त संचार बढ़ता है, पाचन में सुधार होती है और थकान कम होती है। इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर की देखभाल के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद कॉमन है और ये सीधे भूख और पाचन को प्रभावित कर सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग फॉलो करना पड़ेगा। तो भोजन के स्वाद, गंध और बनावट पर ध्यान केंद्रित करने से भूख कम होने पर भी भोजन का आनंद बढ़ सकता है। हमें सेफ फूड हैंडलिंग फॉलो करना है। सुरक्षित भोजन प्रबंधन, तो उपचार के दौरान प्रतिरक्षा कम होती है, इसलिए भोजन से होने वाले संक्रमणों से बचाव जरूरी है। कड़ाई से हाइजीन हमें फॉलो करना पड़ेगा। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। भोजन को अच्छी तरह पकाएं। कच्चे स्प्राउट्स, अधपके मांस और अनपैस्चराइज्ड दूध या जूस अवॉइड करना पड़ेगा। बचे हुए भोजन को सही तरह से स्टोर करना चाहिए। साफ बर्तन और फिल्टर या उबाला हुआ पानी यूज करना पड़ेगा। हीलिंग केवल खाने से नहीं बल्कि आराम, हल्की गतिविधि, भावनात्मक समर्थन में भी, सुरक्षित खाना तैयार करने से भी आती है। आखिरी स्लाइड में मैं यह बताना चाहती हूँ कि तो कोई एक कैंसर डाइट सभी के लिए सही नहीं है। पर्सनलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। संतुलन, विविधता और सुरक्षा कठोर प्रतिबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेट मेथड, फूड डायरी और लक्षण विशेष चार्ट पोषण को व्यावहारिक बनाते हैं।
पोषण का मतलब परहेज नहीं बल्कि शक्ति, ऊर्जा और आशा को पोषित करना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आज के वेबिनार में इतनी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है कि आज के वेबिनार कैंसर डाइट के बारे में कंफ्यूजन दूर करने और व्यावहारिक उपकरण देने में मददगार रही होगी। याद रखें, आपको पोषण सफर का हर छोटा कदम आपके हीलिंग में बड़ा फर्क डाल सकता है। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। थैंक यू। धन्यवाद हर्षा, आपने समझाया कि कैंसर में मरीजों के देखभाल में सही खान पान कितना मदद करता है, और साथ ही साथ कैंसर केयर में हमें कैसा फूड मेंटेन करना चाहिए, आपने वो भी हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हुए आज हम अपने आखिरी स्पीकर्स को बुलाना चाहते हैं, जो है एक बहुत ही खास व्यक्ति है, एक कैंसर वॉरियर के केयर गिवर जो पिछले 20 वर्षों से एक समर्पित स्कूल टीचर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने न केवल अपनी विद्यार्थियों के प्रति बल्कि अपने परिवार के प्रति भी अद्भुत जिम्मेदारी निभाई है। 3 बच्चों के पिता होने के साथ साथ उन्होंने न केवल बच्चों का देखभाल करते हुए इस चुनौतीपूर्ण समय में भी धीरता और धैर्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपने कैंसर वॉरियर को इस कठिन यात्रा में हिम्मत और मजबूती के साथ आगे बढ़ने में संभव सहायता दी। कृपया मेरे साथ मिलकर स्वागत करें मिस्टर नूर मोहम्मद अली जी का, जो आज हमारे साथ अपनी जिंदगी की कहानी और अनुभव साझा करेंगे। वेलकम सर। हाँ, वेलकम, धन्यवाद। जी सर, तो आप अपना इंट्रोडक्शन हमें दें। Honorable Speaker, Dr. Rupjyoti Sharma, Consultant Medical and Hematology Oncologist, Assam State Cancer Institute, Guwahati. Next, Manas Gupta, Psycho-Oncologist for Base Care. Next, Harsha Joshi, Onco-Dietitian for Base Care. And Moderator, Sangeeta Devi Chaudhary, Care Complement for Base Care. सभी को और इस मीटिंग में सारे मेंबर्स ज्वाइन किया है, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभेच्छा जनाती हूँ। मेरा नाम नूर मोहम्मद अली, मैं असम के बंगाईगांव जिले का रुद्रज्योति हाई स्कूल का एक हेड टीचर हूँ। मैं 26 साल से स्कूल में पढ़ाता हूँ। मेरा पत्नी का नाम अकलीमा खातून है। 2022 से पहले उसके पेट में दर्द शुरू हुआ। मैं हॉस्पिटल गया था उसको लेकर। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने उसको गोलियां और कुछ दवाई दे दिया और बोला है ठीक हो जाएगा। 6 महीने के बाद फिर ऐसे पेट में दर्द शुरू हो गया और फिर भी हॉस्पिटल गया। ऐसे दवाई डॉक्टर ने दिया था और 2023 साल में पहले मार्च महीने में उसके पेट में एकदम पूरा से पूरा एकदम दर्द शुरू हो गया और वह रोने लगा। मैं दूसरा हॉस्पिटल गया था, हमारे बरपेटा डिस्ट्रिक्ट असम राज्य चिकित्सालय में। वो एक गायनी डॉक्टर था, उसका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन है। वो सीटी स्कैन करने के लिए बोला था और सीटी स्कैन करके रिजल्ट उसको देखा था। उन्होंने बोला है जो पूरा एकदम पूरा 100% उसके कैंसर हो गया और पेट में एक बड़ा एक ट्यूमर हो गया और बोला है कि कैंसर एकदम श्योर कैंसर हो गया। तो उन्होंने बोला है अभी जल्दी से जल्दी अभी गुवाहाटी जीएमसी में उसको एडमिट कर दीजिए और उसको चिकित्सा कर लीजिए। मैं एक दिन बाद जीएमसी में गया था। जीएमसी में जाने के बाद उसको एडमिट किया था। एडमिट करने के बाद वो सीटी स्कैन करा दिया और अल्ट्रासाउंड करा दिया और एक्सरे करा दिया, ब्लड रिपोर्ट करा दिया। ऐसे बहुत सारे उसको रिपोर्ट होने के बाद डॉक्टर ने बोला है उसको कैंसर हो गया और उसको सर्जरी करना पड़ेगा। 2023 7 अप्रैल में उसको सर्जरी हो गया था और बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद उसको बोला है कि कैंसर हो गया। उसके बाद जीएमसी से असम स्टेट कैंसर में उसको भेजा दिया था और उसमें एडमिट हुआ और 6 केमो और 18 सेमी केमो 10 लाख केमो है और इसका नाम दूसरा दवा है। तो उसको 18 अर्थात 21 डेज आफ्टर मैंने
एक साल में 18 बार दिया था। इसके बाद वो मैंने डॉक्टर ने बोला है अभी तो नॉर्मल हो गया, अभी कुछ नहीं है, और 3 महीने के बाद फिर और चेक कर लीजिए। 3 महीने के बाद उसको चेकअप किया था और कुछ नहीं मिला था। फिर और 3 महीने का और मैंने टाइम दिया था और बोला है 3 महीने के बाद आ जाइए। 3 महीने के बाद फिर जीएमसी में हॉस्पिटल में गया था और बोला है जो मेरे पुतली बोला है जो पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द शुरू हो गया। फिर डॉक्टर ने पूरा फिर सीटी स्कैन किया था और बोला है कि फिर जो कैंसर आ गया। तो कैंसर ऐसे है जो का ओवरी 125 यह कैंसर है कि डॉक्टर बोला है जब पहले उसको केमो देने पड़ेगा, उसके बाद सर्जरी करेगा। हमारे ऑनरेबल डॉक्टर रुद्रजीत शर्मा सर उसको मतलब अच्छी तरफ से उसको एग्जामिन किया है और 6 बार केमो देने के लिए वो मतलब सजेशन दिया है। 6 बार केमो खत्म हो गया और डॉक्टर रुद्रजीत शर्मा ऑनरेबल उन्होंने बोला है कि हम उसको सर्जरी करेगा। उस दिन 18 सितंबर 8 सितंबर उसको सर्जरी किया है ऑनरेबल रुद्रजीत शर्मा सर। उसके बाद उसको आईसीयू में रखा है। अभी 6 दिन आईसीयू में रखने के बाद अभी थर्ड फ्लोर जीएमसी थर्ड फ्लोर में है। अब वो चिकित्सा चल रहे हैं, ऐसे है अभी। सर पेशेंट का जो कहानी है हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप थोड़ा और बता पाए कि कैंसर केयर में फोरबेस केयर का रोल कहाँ पे था एंड सर ने आपको कैसे मदद की ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम। धन्यवाद आपको। इसे मैंने आपको तो पहले आपको कोई इंफॉर्मेशन हमको मिला नहीं था और ऑनरेबल रुद्रजीत शर्मा सर पहले बोला है कि फोरबेस केयर में आपको जेनेटिक जो मैंने एग्जामिन करने पड़ेगा। इसलिए वो एक आदमी को मैंने मिला था हमको, वो वेस्ट बंगाल का था। वो हॉस्पिटल में आया, उसके साथ मैंने मुलाकात किया था और वो उसको हाथ में हम ब्लड दे दिया और वो ब्लड आपको भेज दिया था फोरबेस केयर में दिया था 2025 अप्रैल महीने में वो ब्लड दिया है और 20 दिन के बाद हमको रिपोर्ट मिला है। रिपोर्ट तो मिला है और जेनेटिक बोला जो रिपोर्ट आप लोग हमसे मांगा था, हम लोग पूरा रिपोर्ट आप लोग को दिया था और फादर्स तरफ से कोई ऐसे बीमार नहीं आया और मदर्स तरफ से भी कोई बीमार नहीं आया। पूरा से पूरा हम आपसे रिपोर्ट मिला था ऐसे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद किया है और हमारा ऑनरेबल डॉक्टर रुद्रजीत शर्मा को भी हमारे तरफ से बहुत धन्यवाद देगा। जी थैंक यू सर। तो सर आप इतना कुछ संभाल रहे हैं, फैमिली प्लस पेशेंट को उनका ट्रीटमेंट उनका हॉस्पिटल में लेके जाना एंड कीमो के दौरान ऑब्वियसली पेशेंट वीक हो जाते हैं, तो आप सब कुछ इतना संभाल रहे हैं, तो बाकी देखभाल करता बाकी केयर गिवर के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर। बाकी सबको ऐसे मैसेज देना चाहता है कि जब मैंने यह दुनिया में जिंदा रहेगा तो मैंने हमेशा आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। उस प्रॉब्लम के साथ आप जरूर लड़ाई करना होगा और जो सेना लड़ाई में मैंने पीछे हटेगा तो वो जीत जाएगा और जो सेना प्रॉब्लम के साथ हमेशा लड़ाई करेगा वो जरूर सक्सेस होगा। इसीलिए सबको मैं ऐसे मैसेज देना चाहता हूँ कि हमेशा प्रॉब्लम के साथ आप लड़ाई करते रहेगा। जी सर, हम प्रे करेंगे कि मैम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा रिकवर करे और बाकी पेशेंट को भी आपने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है ताकि उनको भी हिम्मत मिले कि कैंसर जैसे एक बीमारी से कैसे लड़ना है। रोज नए नए चैलेंजेस आते हैं, हमें उन्हें कैसे फेस करना है, अपने घर को संभालना है एंड पेशेंट को भी हमें संभालना है, साथ ही साथ अपना ख्याल रखना, अपना जॉब। मैडम सुनिए, मेरा स्कूल है, मेरा संसार है और पत्नी को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और ऑफिस में जाना भी पड़ता है। इसे सारे से सारे काम मुझे संभालना पड़ता है। इसलिए मैं प्रॉब्लम के साथ मैंने हमेशा लड़ रहा था। जी सर,
बाकी आपके घर वाले भी सर अच्छा रहे, हम प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द मैम रिकवर हो जाए। तो आप अच्छे रहिए और हम हमेशा याद रखें कि हम आपके साथ हैं, डॉक्टर आपके साथ हैं और बाकी आपके फैमिली भी आपके साथ है। तो कभी भी आपको कोई भी मदद चाहिए तो आप हमें बेझिझक हमें याद कर सकते हैं सर। जी। तो हमारे इस प्रोग्राम के वेबिनार के अंत में हम आगे बढ़ते हुए हमें अपने पार्टिसिपेंट से सबसे पहले तो मैं नूर मोहम्मद सर का अपने तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी कहानी अपने सभी श्रोताओं के सामने उन्होंने साझा की, जो कि एक सच्ची प्रेरणा है सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये वेबिनार के आगे बढ़ते हुए हमें अपने पार्टिसिपेंट से भी कुछ प्रश्न मिले हैं, जो कि उनके मनोबल और पोषण के रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो मैं अपने स्पीकर से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सवालों का जवाब दे। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रश्न मिला है डाइट से रिलेटेड, क्या मुझे कैंसर के दौरान चावल या रोटी छोड़ देनी चाहिए? तो मैं ये हर्षा जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस प्रश्न का हमें उत्तर दे। थैंक यू संगीता क्वेश्चन पूछने के लिए। आंसर ये है कि नहीं, चावल और रोटी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें सीमित मात्रा में और संतुलित आहार के हिस्से के रूप में हमें लेना चाहिए। और बैलेंस्ड डाइट हमें फॉलो करना पड़ेगा, इसको कम्प्लीटली अवॉइड करने का भी कोई जरूरत नहीं है। हमें रिफाइंड आइटम्स और ऑयली फूड आइटम्स कम्प्लीटली अवॉइड करना पड़ेगा। तो चावल या रोटी लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। चावल मैक्सिमम डिनर के टाइम पे अवॉइड कर देनी चाहिए, सुबह के टाइम पे चावल ले सकते हैं। और रोटी से हमें फाइबर भी मिलेगा, तो रोटी भी ले सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उसमें। थैंक यू हर्षा। आशा है कि हमारे श्रोताओं को उनका जवाब मिला होगा। उसके बाद हमें और एक क्वेश्चन मिला है सर के लिए, हाउ मच टाइम टू सर्वाइव अ 4th स्टेज लंग कैंसर पेशेंट? सर ये आपके लिए हमें एक श्रोता से क्वेश्चन मिला है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर इसका आंसर दे पाए सर। ओके, स्टेज 4 लंग कैंसर एक बहुत ही हेटेरोजेनस डिजीज है। मतलब एक इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि 30-40 बीमारों का एक जो इकट्ठा होने के बाद जो बोलते हैं लंग कैंसर। तो लंग कैंसर सिर्फ एक बीमार नहीं है, मल्टीपल बीमारों का एक कॉम्बिनेशन है। अभी डिपेंड करता है कि कौन सा इसमें से कौन सा टाइप का हुआ है। तो वो डिटरमाइन करने के लिए हम बायोप्सी करते हैं। ठीक है, बायोप्सी में IHC करते हैं, जिसमें देखा जाता है कि NSCLC है कि स्मॉल सेल है। और अगर NSCLC है तो उसको अमज है कि एडिनोकार्सिनोमा है, तो हर तरह का होता है। तो अगर NSCLC टाइप का कैंसर है तो उसमें NGS की टेस्ट होता है, जिसको जेनेटिक टेस्ट बोलते हैं, स्पेशल जेनेटिक टेस्ट। तो इसमें कभी कभार म्यूटेशन पॉजिटिव आता है। तो जो पेशेंट फीमेल है, जो पेशेंट ने स्मोकिंग नहीं किया है और जो पेशेंट यंग है, उसमें ये म्यूटेशन आने का संभावना काफी ज्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर अराउंड 50-60% यानी 100 मरीजों में 50-60 लोगों को ये म्यूटेशन पॉजिटिव आएगा अगर हम टेस्ट करेंगे। तो अगर हम टेस्ट भी नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर म्यूटेशन आता है, काफी सारा अच्छा दवाइयाँ है। तो अभी ऐसे बोलना मुश्किल है कि कितना साल देते, तो हर म्यूटेशन के लिए अलग अलग होता है। तो आजकल इतना अच्छा दवाइयाँ है, जिसको टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं, केमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, बहुत सारा चीजें है। इसके वजह से सर्वाइवल जो है काफी बढ़ चुका है। जो पहले हम आज से 10 साल या 15 साल के पहले बात करेंगे, जिस टाइम में इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी कुछ नहीं था, सिर्फ केमोथेरेपी। तो उस टाइम में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल यानी 5 इयर्स एंड बियॉन्ड बहुत ही कम लोग जीते थे। लेकिन आज के जमाना में टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और काफी नया नया मेडिसिन भी आ रहा है इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स में। तो सर्वाइवल का जो पॉसिबिलिटी दैट इज एक्सटेंडेड। So I think that answers the question. Or if anything, जी थैंक यू सर। हमें और एक क्वेश्चन मिला है, मम्मी को कीमोथेरेपी लेने में डर लगती है, हॉस्पिटल में जाने का नाम नहीं होता है, डर कैसे भगाए? तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी ऑन्कोसाइकोलॉजिस्ट मानसिक को
मानसी, क्या आप ये प्रश्न, अगर आप ये प्रश्न का उत्तर दें। जी, सर आप अपने मदर को ये भरोसा दिला सकते हैं कि जो उनका डर है, जिनको डर लग रहा है, वो बिल्कुल स्वाभाविक है और ये इलाज उनका स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए किया जा रहा है। आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उनके साथ ही रहें, उन्हें समझाइए कि हर सत्र उन्हें स्वस्थ होने के लिए एक कदम करीब लेके जाता है। तो जैसे कि बहुत अस्पतालों में सपोर्ट ग्रुप भी होते हैं, जहां मरीज और आप उनके केयरगिवर या उनके बाकी परिवार वाले अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। ये ना तो केवल भावनात्मक सहारा देता है, बल्कि जो इलाज है, उसकी जो प्रक्रिया होती है, उसको समझने में और जो आपका डर अंदर से है, उसको कम करने में बहुत मदद करता है। यहाँ तक कि पेशेंट को जो अकेलापन लगता है कीमो की कैंसर की जर्नी के दौरान, उसको कम करता है। इसमें आपका जो खर्च है या जो कॉस्ट आती है, सिर्फ और सिर्फ आपका थोड़ा सा ध्यान और समय ही होता है, जो इसके फायदे के मुकाबले बहुत कम है। तो आप चाहें तो इन सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उनको समझा सकते हैं कि ये एक सफर का ही हिस्सा है, ये कदम आपकी तबीयत को बेहतर करने के लिए है। जी, थैंक यू मानसी। और एक क्वेश्चन हमें डाइट के रिलेटेड मिला है। आई गॉट कंफ्यूज्ड ऑन वेदर आई शुड नॉट ईट स्टार्च फूड और स्टार फ्रूट इन माय लास्ट काउंसलिंग सेशन। कैन यू प्लीज टॉक अबाउट दिस? हर्षा, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी। यस, सो उर्मिला श्रेष्ठा जी, तो स्टार्च फ्रूट मतलब ये है कि फ्रूट में स्टार्च होती है, कार्बोहाइड्रेट वाली फूड आइटम्स और फाइबर वाली फूड आइटम्स में स्टार्च होती है, पर स्टार फ्रूट अलग है। स्टार फ्रूट एक फ्रूट है, वो आप ले सकते हैं, पर अगर आपको पहले से किडनी का इशू है या कुछ ऐसे पोटेशियम लेवल्स हाई है या सोडियम लेवल हाई है, आपकी इलेक्ट्रोलाइट लेवल इम्बैलेंस्ड है, तो स्टार फ्रूट अवॉइड करना पड़ेगा। पर नॉर्मली आप ले सकते हैं, अगर आपकी इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ नॉर्मल है, आपकी किडनी का कोई इशू नहीं है, तो स्टार फ्रूट्स आपके डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। जी, थैंक यू हर्षा। उर्मिला मैम, होप आपको आपके क्वेश्चन का, आपके सवाल का जवाब मिला होगा। आगे बढ़ते हुए मैं सर को और एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जो एक पेशेंट से आया है, व्हाट टू डू अबाउट द रैशेस एंड माउथ अल्सर्स ड्यूरिंग द रेडिएशन थेरेपी, एनी सजेशंस? सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी इसका आंसर देने के लिए। ओके, जब हम हेडन में कैंसर के लिए या इसोफेगस कैंसर के लिए रेडिएशन देते हैं, तब ये नॉर्मल है कि जो रेडिएशन है, ये जो म्यूकोसा है हमारा अंदर का, मुंह के अंदर और जो फूड पाइप है उसके अंदर जो म्यूकोसा होता है, उसका डैमेज होता है। तो कैंसर का जो इलाज है, इसके वजह से नॉर्मल टिश्यू भी डैमेज होता है, इसकी वजह से अल्सर होता है। तो ये वेरी कॉमन है। तो ये म्यूकोसाइटिस, इसको म्यूकोसाइटिस बोलते हैं बेसिकली। तो इसमें इतना सीवियर है, डेथ इज इम्पोर्टेंट। वो इम्पोर्टेंट है जानना कि थोड़ा है, मीडियम वाला है, बहुत ज्यादा है कि वो कुछ मुंह के अंदर ले ही नहीं पा रहा है। तो अगर काफी सीवियर हो गया है क्योंकि वो कुछ खाना ही नहीं खा पा रहा है, तो राइस ट्यूब देना पड़ेगा। और थोड़ा है, यानी थोड़ा सा मसाला है अंदर, सिर्फ खाने में थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन बाकी चीज में ज्यादा तकलीफ नहीं है। तो उसमें आप क्या काम कर सकते हो, पानी में जो बेकिंग सोडा है, 1 गिलास पानी में बेकिंग सोडा थोड़ा डाल के उसको मिक्स करके उससे कुल्ला कर सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और शहद जो है, हनी, जो मुंह बोलते हैं असमीज में, उसको छाला में जो अल्सर है उसमें लगा सकते हो। और कुछ कुछ मेडिसिन भी है, कुछ कुछ ऑइलमेंट जो लगाने से पेन भी कम होता है। तो खाना खाने से पहले आप लगाइए, और क्योंकि पेन कम हो जाएगा तो खाना खा पाएंगे। जी, थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगी, हमें मिला है पेशेंट शमशूर जी से। नेगेटिव थॉट्स रिलेटेड टू हेल्थ, फैमिली, बिजनेस कमिंग वन बाय वन, व्हाट शुड आई डू? मैं मानसी को रिक्वेस्ट करूंगी ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ओके, शमशूर जी, जब हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम जो एक थॉट आता है उसे बार बार एक साइकिल के तौर पे, एक लूप की तरह चलाते हैं दिमाग में। और वो लूप बनने का कारण ये होता है कि एक नेगेटिव थॉट आपका दूसरा नेगेटिव थॉट को उसे खींच कर लेके आता है। तो वो एक साइकिल, एक लूप सा बन जाता है और फिर हमें लगता है कि इसे तोड़ना, इससे बाहर आना काफी मुश्किल है।
तो लेकिन इसको तोड़ने के लिए आप कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अपना सकते हैं और ये बिल्कुल पूरी तरह आपके ही कंट्रोल में होता है। तो इसे तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सांस पर ध्यान ले सकते हैं 2 सेकंड के लिए पॉज लेकर, और खुद से कह सकते हैं कि मैं जो ये लूप में फंसा हूँ मैं उससे खुद से बाहर आ सकता हूँ। फिर जो आपका जो ध्यान आपने सांस पे लगाया है, उस ध्यान को आप अपनी छोटी छोटी चीजों की आगे अपने पॉजिटिव कामों में लगा सकते हैं, जैसे कि सिंपली 1 गिलास पानी पीना, या फिर आप हल्का फुल्का टहल सकते हैं, अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं, किसी से अपनी जो बात है उसको साझा कर सकते हैं। ये जो आपको नेगेटिव थॉट आता है ये स्थायी नहीं होता है, आप इन्हें जाने दे सकते हैं, इसका पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अगर हम एक थॉट को ऊपर बार बार रिप्ले करते हैं तभी अगला थॉट बन के एक साइकिल क्रिएट करता है। तो इसी तरीके से आप इस नेगेटिव थॉट की साइकिल से, लूप से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू मानसी। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे ओवरऑल जो सारे श्रोता है उनके लिए अगर सर आप एक मैसेज दे, जैसे कि हमारे साथ आज एक केयर गिवर भी जुड़े हुए हैं, तो बाकी केयर गिवर को भी हम क्या मैसेज दे सकते हैं सर? तो कैंसर का जो जर्नी है, डायग्नोज होना, एक इवालुएशन, ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स, ये एक कठिन जर्नी है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट तो दोनों टेबल के अलग अलग साइड में होता है, बट बोथ आर ऑन द सेम साइड ओनली। तो ये जो जंग है, ये जंग में हम सब लोग एक साइड में हैं, कैंसर अलग साइड में है। तो जब हम ये समझेंगे कि सब लोग, डॉक्टर्स, पेशेंट्स, केयर गिवर्स, साइको ऑन्कोलॉजिस्ट, डाइटिशियंस, एवरीवन, सब लोग जुड़ा हुआ है कि कैंसर को डिफीट करने के लिए। तो कोई भी टाइम में कोई भी मदद चाहिए तो मदद मांगना जरूरी है। दूसरा चीज है कि जो चीजें जानना बीमारी के बारे में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि जब तक आप नहीं जानेंगे अपनी बीमारी के बारे में कि बीमारी क्या है, कैसे इलाज होता है, इसका कितना खर्चा होता है, कितना समय लगेगा, क्या प्रोसेस है, जब तक ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगा तब तक ये डिफिकल्ट हो जाता है समझाना भी कि वो फॉलो अप कैसे करें। तो कभी कभार लोग डिफॉल्ट भी करते हैं, यानी 20 में ये ट्रीटमेंट चल रहा था अच्छी तरह से, 20 में लगा कि उसको ठीक हो गया तो हम बाद में आएंगे नहीं। तो ऐसे बहुत बार होता है कि स्पेशली इन ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर मरीजों में क्या होता है, जनरली हम केमोथेरापी देते हैं पहले, उसके बाद सर्जरी होता है, उसके बाद प्लस माइनस रेडिएशन थेरापी। तो हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले लिया इनिशियली, तो 20 में ठीक हो गया, पूरा जो गांठ है वो गायब हो गया, तो लगा कि पूरा ठीक हो गया है, तो घर चला गया, वापस आया नहीं। और उसके बाद जब बीमारी लौट आया है तब फिर से वापस आता है कि ये डॉक्टर साहब अभी देखिए क्या करना है, हमने तो सोचा था कि बीमारी ठीक हो गया है। तो इसलिए जब भी हम एक प्लानिंग करते हैं तो पहला होता है डायग्नोसिस करना कि बीमारी कौन सा है, उसके बाद होता है इवालुएशन, यानी बीमारी कौन सा स्टेज का है और ट्रीटमेंट कैसे होगा, रेडिएशन थेरेपी होगा, सर्जरी होगा, कीमोथेरेपी होगा, तो इवालुएशन होता है। उसके बाद फाइनल प्लानिंग होता है। ये प्लानिंग अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कैंसर का इलाज बाकी जुकाम जैसा इलाज जैसा नहीं है। इसमें पेशेंट्स का योगदान, केयर गिवर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सारे चीज़ों को जानना समझना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो मैंने एक ब्लॉग चालू किया था। तो मैक्सिमम लोग आजकल पढ़ ही पाते हैं इंग्राजी, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें एक ब्लॉग चालू किया था, तो ताकि जो चीज़ लोगों को छोटी छोटी चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। तो लोगों में ट्राई करता हूँ कि जो भी पेशेंट्स की तरफ से जो सवाल आता है ओपीडी में, जो कॉमन क्वेश्चन है उसका जवाब मैं दे सकूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ब्लॉग आप देख सकते हो, और उससे शायद आपको मदद भी मिल सकता है। और ये वेबिनार से अगर फायदा हुआ है तो बताइएगा। तो आई थिंक विल कंटिन्यू दिस काइंड ऑफ पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम, एंड थैंक यू एवरीवन। जी थैंक यू सर। तो जैसे जैसे हम इस सत्र के अंत के ओर बढ़ रहे हैं, मैं दिल से हमारे सभी वक्ताओं को, सभी प्रतिभोगियों और खासतौर डॉक्टर रूपज्योति शर्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लगातार कैंसर के इलाज में देखभाल और अपना योगदान दे रहे हैं।
आप सभी का धन्यवाद जो आज मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, मरीजों के अनुभव और मेडिकल एक्सपर्टीज से जुड़े विषय पर हुई इस महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बने। धन्यवाद सर, जो आपने हमें इतना समय दिया और हमारे पेशेंट्स को भी संबोधित किया। आगे बढ़ते हुए हम अपने इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हमारे डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ऑन्कोबडी से। ये एक 4बेस केयर के द्वारा बनाया गया ऐप है जो कि 360 डिग्री डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है। ये एक सार्वजनिक और पेशेंट सेंट्रिक समृद्धि प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए कैंसर के रोगियों और उनके परिवार वालों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई में पूर्ण समर्थन प्रदान करने में सक्षम है। ऑन्कोबडी से रोगी अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ सलाह ले सकते हैं, मानसिक रोग विशेषज्ञ, डाइटिशियंस, दर्द और पैलिएटिव केयर विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। वे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को अपलोड और मैनेज भी कर सकते हैं। वो कम्युनिटी में कोई भी प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स और बाकी सिमिलर तरह के कैंसर पेशेंट्स इसमें अपने जवाब, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब आज इस इवेंट के समाप्ति के नजदीक पहुंच चुके हैं। हमें पता है कि बहुत सारे सवाल पूछने रह गए हैं, लेकिन समय की कमी के कारण हम सभी सवालों का जवाब नहीं दे सके। मानसी, हर्षा हर समय ऑन्कोबडी में उपस्थित है आपके सवालों का जवाब देने के लिए। अभी चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज लिंक को देखें। चैट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी स्क्रीन की दाईं ओर प्रदर्शित क्यूआर कोड को मोबाइल फोन से स्कैन करें और ऑन्कोबडी योर कंपेनियन इन कैंसर केयर यूट्यूब पेज से हमारे साथ जुड़े। अब कृपया करके चैट बॉक्स में दिए गए ऑन्कोबडी एप्लीकेशन के लिंक को भी देखें। आप इसे फोन पर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें, इसे समय समय पर अपडेट करते रहें। आप सभी के साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत अच्छा लगा और बेस केयर की तरफ से मैं संगीता आप सबसे विदा लेती हूँ। मजबूत रहिए, सकारात्मक रहिए, इस सफर में आपके साथ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।